मुझे कई दफा देख के ऐसा लगता है कि children from so-called broken homes are sometimes better off than the children who are living in these toxic environments at home. You know, if you are divorced, if you are a single parent, that it automatically means to the men that you are available. You need to be this strong. इतना तगड़ा आपको होना है कि आप उनको push back करें. आप उनको ये जरूर बताएं कि जी मैं single parent जरूर, but I'm not available. The decision not to remarry is my decision. I have made a choice not to remarry at the moment. narcissistic लोग होते हैं ना आपकी जिंदगी में, सबसे पहले आपको आइसोलेट करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस शाटर करते हैं. दे टेल यू you're not good for anything. मुझे लगता है कि औरत अपने लिए रास्ता बंद नहीं करती. लाइक इफ यू आस्क मी, तो मैं ये नहीं कहती I'm not never going to get remarried. मैं यही कहती हूँ कि if I come across anyone जो मुझे लगा इस तरह का कि Assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. Assalamualaikum जी all. आज हमें अफीफा ज्वाइन कर रही हैं. अफीफा is an educationist and also been through a process of divorce. So we want to understand how divorce is looked upon in this society. और लोग जो है divorce को लेके जो हमारे single parenthood है या जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर क्या psychologically impact आता है, because she also has kids and so on. So उसके ऊपर थोड़ा सा आज discussion करने की कोशिश करते हैं, because the idea is so ladies, when I start here, what I mean is कि जो divorce है, telling people I am a divorcee is a big thing still. And also, the idea कि इसको भी stigmatize किया जाता है. Not many people are accepting of the fact, कहते हैं कि अच्छा इसी में कोई मसला होगा, and so on. So, Afifa, welcome to the show. And welcome to our show, Afifa. Thank you so much. So, what do you think, Afifa, about the stigma around divorce? I think these are changing times, and times have changed. Back in the day when divorce was, a taboo and something that shouldn't be spoken of, I think now times have changed, and more so the reasons have changed. Women are more confident. Usually पहले जो होता था वो ये था कि एक बंदे ने एक औरत को छोड़ दिया for what XYZ reason. It was never a choice of a woman. However, times have changed and women are taking this initiative as well. Unfortunately, they are obviously, I this is what I tell to everyone who talks about it. When you have kids and when you have your own house and your own family, taking this decision after that is very, very hard for any woman. It's not an easy decision because that एक कंप्लीट फैमिली जो होती है, जो एक यूनिट होता है जिसमें there's a father, there's a mother, then there are children, जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चों को वहाँ मिलती है, एंड it's like the एक जो हमारा नेचुरल एक वे है, उससे जब हम हटते हैं तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. लेकिन एट टाइम्स रीजन इतने बड़े हो जाते हैं कि देन अ मदर नीड्स टू टेक अ डिसीजन कि ईदर ये वाला जो माहौल जो मैं एक सो कॉल्ड इनको नॉर्मल फैमिली लाइफ देना चाह रही हूँ, उसका किस किस्म का इफेक्ट है इनके ऊपर. if there's abuse in the house, if there is if the woman is treated badly in the house, then these are not the kind of values we want our children to learn and to grow up with. These kind of situations then create messed up children. Yeah, because I think जो abuse आप देखते हैं, so then you are going to be abusive as well and becomes really normalized in your behavior and attitude. तो मेरे ख्याल से and also I think कि आप living या giving them that toxic माहौल in your house, that's more dangerous. I mean आपकी आपस में बन नहीं रही है दोनों की, तो who is the affected one? Of course the kids. And even I think when you take the divorce, या ठीक है, which is of course चाहे वो पेरेंट मदर से है या फादर की तरफ से है, फिर भी आखिर में मुझे लगता है जो साइड है वो बच्चे ही, बच्चों को जो मेंटल स्ट्रेस ये जो एक है कि जी सिंगल पेरेंट, which is that's the choice they have, but again I think बच्चों को काफी ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा पहुंचता है, and on their life stages के अंदर वो इस चीज को जरूर
होता है कि जी वी आर फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली। क्यों? क्योंकि अगर वो उनको खुद भी नहीं पता, अगर घर का माहौल भी नहीं, आप बाद में शिफ्ट हो गई हैं, यू आर लिविंग हैप्पीली, उनको सोसाइटी में लोग आगे पीछे, इन देयर क्लासरूम में भी, इन द एजुकेशनल सिस्टम, सोसाइटी के अंदर, वो थोड़े बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, दे स्टार्ट डिस्क्लोज एंड से कि जी हम तो सिंगल पेरेंट है, या मेरी माँ नहीं है, या मेरा बाप नहीं है, या हम अलग रह रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स आल्सो इफेक्ट द किड्स अगेन बहुत ज्यादा। You're right. It does have an effect, but मुझे लगता है कि again, like I said, these are changing times, और over the time ये चीज़ मुझे लगता है कि change होती जा रही है। Society में इसकी acceptance बहुत ज़्यादा आती जा रही है। So the children are basically not stigmatized as children from broken homes, or maybe these children are different, maybe हमने इनको कोई differently treat करना है, or people feel sorry for them. I think this is not the case. I mean, as far as I have since I am into a field where I'm interacting with children coming from all sorts of backgrounds, मुझे कई दफा देख के ऐसा लगता है कि children from so-called broken homes are sometimes better off than the children who are living in these toxic environments at home, जहाँ apparently माँ बाप दोनों हैं, but उनका इतना अफेक्ट इतना बुरा है, और इतनी यंग एज से बच्चों में इतने behavioral issues हैं that the list is too long to talk about. Because I think the idea is कि जब the parents they don't respect each other, या माँ को let's say आप respect नहीं दे रहे हैं, तो there's this a cycle that goes on. आप नहीं respect देंगे तो माँ does not feel respected in the whole family. सास नहीं respect करी, नन नहीं करी, so of course it's a continuous kind of a thing that goes around. But having said that, मुझे ये भी लगता है कि जहाँ तक हम इसकी बात करें ना, अभी भी if we talk about मतलब कि we have to admit this one thing, हम अंग्रेजी ज़बान में इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है? So this is just what like 10% of पाकिस्तान की population, that's about it. तो जो हमारी मेन अभी भी हमारे मैसेज हैं, उनमें डाइवोर्स को अभी भी स्टिग्मेटाइज किया जाता है, और अभी भी आप अपने मेन स्ट्रीम के ड्रामा उठा के देखें, उसमें भी डाइवोर्स को कहीं वो नहीं कहते कि यार अच्छा हो गया डाइवोर्स दे दिया, अच्छा हुआ जान छुट्टी। नोबडी सेज दैट, बिकॉज आपका जो अवाम है, जो आपकी तबका है, पूरा ये मुआशी तबका, वो इस चीज को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। आई थिंक दिस इज समथिंग जो ग्राउंड रियलिटीज है और हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हाँ, ये है कि आपके मेरे बच्चे जो है वो प्रिविलेज्ड हैं, एंड उनके साथ साथ के जो बच्चे होते हैं वो भी इस तरह से बहुत सारे होते हैं। मतलब एक क्लास अगर है 20 बच्चों की अगर क्लास है, उसमें से हमें दो तीन हमें इस तरह के बच्चे आराम से मिल जाते हैं who are coming from these kinds of a single parent home से आ रहे होते हैं। So लेकिन ये कि हमारा जो बेसिकली जो पाकिस्तान का मुआशरा है वो अभी भी एक डाइवोर्सी को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब कि नहीं करता। आप अच्छा, मतलब I will tell you one thing, because I have been born and raised in Saudi and then in Dubai. वहाँ पे ये होता था, the woman get divorced after completing her 3 months of iddat, she get married again, even she have kids, और जो बंदा शादी भी करता था ना उसके भी बच्चे होते थे, और इस तरह होता था। आई मीन इट्स वेरी नॉर्मल टू दैट कि अगर एक मर्द ने 3 या 4 शादियां की हुई है, बिकॉज दे कैन फाइनेंशियल, एक तो ये बड़ी बात है कि वो क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट साउंड है, तो वो हर बीवी को अपनी एक पोर्शन में रख लेता है, नो झगड़ा नथिंग, और उनके पास एक आम सी उनकी कल्चरल एक एक्सेप्टेंस है कि जी कोई बात नहीं कर। उससे क्या हो, उससे ये हुआ जो औरत को डिवोर्स लेना चाहती है ना, वो डरती नहीं है कि अब मेरा क्या होगा नेक्स्ट। वो मतलब एक दफा मैंने पाकिस्तान सोसाइटी में डिवोर्स ले लिया, मेरे तो स्टिग्मा अटैच करेंगे मेरे साथ, इतना ज्यादा मुझे टफ टाइम मिलेगा, unless if she is very confident and she is very earning very well, she is financially very confident, तो वो खवातीन जल्दी जाके, या उनकी फैमिली की सपोर्ट बहुत अच्छी है, फादर एंड द ब्रदर, आई विल से द मेल मेंबर्स, क्योंकि वही तो घर चला रहे थे, वो उनको कहते हैं ओके यू गेट द डिवोर्स, वी विल सपोर्ट यू फुल 100, क्योंकि मैंने ऐसी भी सुनी है खवातीन जो कहती हैं हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं था, एंड द ब्रदर्स बिकॉज दे हैव देयर वाइफ्स एंड द फादर दे से कि कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज कर, ओके इधर वापस आओगी तो मैं कैसे रो, ये भी चीजें है ना। तो आपके पास ये 3 चीजें अगर है ना, कि फैमिली सपोर्ट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो देन a Pakistani woman can go for a divorce, and if she is an educated and she know कि जी I am going to survive और मैं अपने बच्चों के लिए भी कमा लूंगी, that's fine। अब ये चीजें हैं। अच्छा, मैं अब उस सोसाइटी को इधर का जब करती हूँ कंपेयर,
उनके पास ये चीजें थी कि अगर खवातीन नहीं भी काम कर रही हैं दैट्स फाइन, घर वाले सपोर्ट भी नहीं करते हैं, शी विल गेट मैरिड, नो प्रॉब्लम। और इसमें आम सी बात है कि एक बंदे ने 4-5 शादियां की हैं, खातून भी 3-4 शादियां कर सकती है, उसकी जिंदगी मिजरेबल नहीं। Okay, Naima, I have a different perspective on this. Shadi is not the end game. The thing is कि if you can survive alone, so मतलब कि उस माशरे में आपको एक मर्द लाजमी चाहिए है, but the thing is कि एक जगह से आपने जलील होके आपने कोई बच्चा पैदा करने के आपके अंदर फैक्ट्री तो नहीं लगी ना कि आप इतने बच्चे पैदा कर लिए आपने इसके, अब आप डी के इतने बच्चे पैदा कर ले, बस ठीक है आप इतने बच्चे पैदा कर ले, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन एज वेल। सो मुझे लगता है कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कोई जो खवातीन है वो कोई बच्चा प्रोडक्शन फैक्ट्री थोड़ी है, उसके अंदर भी एक इमोशंस है एंड यू डोंट वांट टू बी यू नो इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो इधर आप चले जाए। सो इधर आइडेंटिटी अगर बिल्ड करने का हमारे पास एक मार्जिन आता है, दैट्स प्रोबब्ली अ हेल्दियर थिंग। अफीफा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं वो ठीक है, आई एम जस्ट वांटिंग टू डू वन थिंग कि जी आपने एक दफा फेलियर हुए हैं इन योर, सो यू डोंट वांट टू स्पेंड योर लाइफ कि जी मैं मर्द के साथ में मर्द के बगैर रह सकती हूँ, दैट्स फाइन, लेकिन आप दोबारा नहीं, बहुत से लोग दोबारा अपनी जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। और औरत की तो अल्लाह ने नेचर ऐसी बनाई हुई है कि शी वांट्स टू हैव किड्स, अगर जैसे पहली शादी से नहीं है तो दूसरी शादी में हो जाए। तो ये नहीं है कि जी मर्द की वजह से ही करना है कि जी आपने सर्वाइव नहीं कर सकते हो हमारी सोसाइटी में, फिर डोंट हैव मर्द इन योर लाइफ। द थिंग इज इमोशनली भी तो चाहते हैं ना आप, और फिर आपके इमोशनल और फिजिकल भी आपके नीड्स होते हैं, वरना तो मैं लेट मी बी ओपन अबाउट इट, हमारी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल दिस। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी सिंगल पेरेंट्स है, सिंगल वुमेन है, जो लोग उनको ज्यादातर ये कहते हैं कि ओके नाउ शी नीड अ रिलेशनशिप या इस तरह। तो आप अगर एक हलाल रिलेशनशिप में आ जाए तो दैट्स फाइन, बट व्हाई ही इज नॉट रेडी अगर किसी के साथ वो अफेयर चलाता भी है। और ये मेरा पर्सनल मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स के अंदर से कि जी उनकी जो आई मीन दे आर विडो, व्हिच आई हैव हर्ड अबाउट देम, कि दे आर सो मेनी इनविटेशन, सो मेनी मर्द they came in their life and they started, let's have fun, let's have an affair because you are divorced या you are a widow, तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, I will give you a good time, I am open about it, I am saying bluntly, and then they said कि जी हम इस तरह की हराम रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, let's get married, but they are not ready for that। वो कहते हैं कि जी मैरिज के लिए तो मेरी पहली शादी में बड़ा खतरा हो जाएगा, राइट, वो मेरे तो बच्चे हैं वहाँ पे, मैं लेकिन अफेयर हम चलाते रहे, you know, this is the perspective I am talking about। पाकिस्तानी सोसाइटी में ये एक चीज है where you know if you are divorced, if you are a single parent, that you know it automatically means to the men that you are available, you know, आपको again आपको बड़ा strong होना पड़ता है, आपको बड़ा confident होना पड़ता है to give them a shut up call, you see you're working, और उस वर्क स्पेस में आपके पास ऐसे लोग आते हैं who are like pushing themselves onto you, you need to be this strong, इतना तगड़ा आपको होना है कि आप उनको पुश बैक करें, आप उनको ये जरूर बताएं कि जी मैं सिंगल पेरेंट जरूर बट आई एम नॉट अवेलेबल। और ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि डेज वर्क, बट हम पता नहीं एक दिन में कितने लोगों को, और ये नहीं होता कि वो यू नो कि ओ अच्छा बड़ी एलिजिबल है, बड़ी ये है, उनको होता है एक औरत है बस, और वो सिंगल, उसके शायद कोई नहीं है, और वो कोई बहुत ही डेस्परेट बैठी भी है, बस हमने तो बात कर और हम हर किस्म की बात कर सकते हैं। yes. मैं ऑनलाइन भी बहुत सारे फोरम्स होते हैं और a lot of people, you know, when मैं बहुत ओपनली इस बारे में बात करती हूँ that I am a single parent, I don't know, मुझे बाकियों का नहीं पता, but I wear it as a badge कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। एंड so you see this decision was my own, not to remarry and to give my time to my kids. Of course आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि you know इंसान यंग होता है, you know you also want to live your life, and लेकिन एक दफा मैंने एक डिसीजन लिया है to you know go on separate ways from the father of my children. मैं बार you know I can't put my kids into that situation. मुझे now it's my kids, they are my priority. एक डिसीजन मैंने लिया है, अनफॉर्चुनेटली मेरे नहीं चल सकी, मैं नहीं उस इंसान के साथ रह सकी, बट अब यू नो माई लाइफ इज फॉर देम। हाँ, जब अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएंगे तब मे बी यू नो
I might Because give it a Afifa, thought, but मुझे ये लगता है because since you have a boy and a daughter, right? So what happens is that if you marry someone, there's always a risk of इतने ज़्यादा आपको पता है, इतनी ज़्यादा molestation है, इतनी ज़्यादा sexual abuse बच्चों के साथ चल रही होती है. I left where I said कि जो आपके इतनी ज़्यादा सेक्शुअल मोलेस्टेशन और बच्चों का दूसरे बंदे के साथ कंफर्ट लेवल होना, ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक बात भी हो सकती है, बिकॉज यू डू हैव अ बॉय एंड अ सन, सॉरी अ बॉय एंड अ डॉटर. तो उसको अगर आप देखते हैं उस इक्वेशन में, तो थोड़ा इट बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक. व्हाट डू यू थिंक? और पता है वेस्टर्न सोसाइटीज में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उनको पार्टनर जो चेंज होते हैं वो चाइल्ड अब्यूज और जो केसेस हैं, क्योंकि वो जाहिर है उनका अपना फादर तो होता नहीं है, और वो दे आर गोइंग टू अदर रिलेशनशिप, तो बच्चों को कैसे देखेंगे, स्पेशली फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज. दैट्स आल्सो अ बिग प्रॉब्लम. You see, ये भी चीज हमारी सोसाइटी में है. It's not that openly spoken of, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में चीज, this ill is existing in our society. मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, शायद if you ask for my personal experience, तो मैं इतनी दूर तक जाके सोचती नहीं हूँ अभी तक. मेरा तो सिर्फ ये होता है, you see, जिन एजेस में वो हैं, they're very vulnerable and they're very, मतलब वो इतनी डिमांडिंग एज में, मुझे ऐसा लगता है जब मैं सोचती हूँ of starting a new relationship, मुझे ऐसा लगता है कि it's too much of work मेरे लिए. शायद मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी अपनी अपनी नीड्स हैं. उन बच्चों को मैंने उस तरीके से टाइम देना है. किसी का स्विमिंग टाइम है, किसी का ये टाइम है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट एक नया रिलेशनशिप, फिर उसको टाइम देना. अल्लाह ताला ने नेचुरली एक चीज आपकी बनाई हुई, एक टाइमलाइन बनाई हुई है कि पहले हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, तो आफ्टर 9 months यू हैव अ बेबी. सो वो 9 महीने आपको मिलते हैं अनइंटरप्टेड कि आप अपना एक रिलेशनशिप डेवलप करो एक दूसरे के साथ. वो आपके बच्चे जब होते हैं, फिर आप नहीं कर सकते. You can't do that, and it's unfair to the man as well when you cannot give your 100%. I just tell you, I mean, recently आपको पता है जो सानिया मिर्जा का केस हुआ, और फिर इस तरह से बहुत सारे हमारे रिसेंटली इस तरह के केसेस हुए ना, उसके अंदर बेसिकली एट द एंड मीम्स वगैरह भी चल रही थी कि इट्स यूजुअली द वुमन हु एंड्स अप विद द चाइल्ड और अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, एंड देन जो मर्द होता है वो शादी करके इधर से उधर निकल जाता है. सो the thing is कि हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर खवातीन जो हैं, they love retaining their children as well. बहुत कम होती हैं जो कहती है हमें बच्चे नहीं चाहिए, अपने पास रखो. I mean, उनकी कोई बहुत मजबूरी होती होगी तो वो इस तरह से करती है. Nobody in their right minds, कोई ऐसी खातून नहीं होगी जो कहेगी ये बच्चे तुम पकड़ो और मेरी जान छोड़ो. I mean, that is something जो I think ये हमारा कोई सब कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा वो भी है कि we are so attached to, we are natural mothers, na? So we cannot disconnect ourselves from our children. देखो, मुझे जैसे I was saying कि online platform पे, by the way, some cases the mothers leave their kids by ऐसे भी. हाँ, देखिए हर किस्म का केस है ना, हर किस्म. अब जैसे मैं आपसे बात कही थी कि ऑनलाइन जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, and I was telling you कि मैं तो बड़ा ओपनली इस बात को करती हूँ, and then a lot of people inbox me और they ask me, अच्छा we are in this kind of situation, what do you suggest, हम क्या करें, do you suggest हम छोड़ दें. तो I always tell them कि देखो, मैं आपकी सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं आपको नहीं कह सकती. मेरे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, मेरे घर से मुझे सपोर्ट थी बहुत मेरे पेरेंट्स की. मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपने आप को संभाल सकती हूँ. मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, तो मैं आपको ये मशवरा नहीं दे सकती. इफ यू आस्क मी आपको छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, आई कांट टेल यू दैट. और मैं जब उनकी बातें सुनती थी, मैं मेरे पे I used to get so down. मेरे पे इतना ज्यादा असर होता था उनका that eventually my mother asked me कि you need to stop that because it's affecting you. और it's terrible out there. और बहुत से लोग, शायद डिवोर्स रेट डबल होता है इससे जो अभी है, अगर इन औरतों को, इन बच्चियों को पढ़ने दिया जाता, इनको पढ़ाया जाता, इनको इंडिपेंडेंस दी जाती, तो शायद ये ज्यादा होता. बिकॉज आजकल का मर्द कर रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं. इट्स अनबिलीवेबल. औरतों को 6 बच्चे 7 बच्चे पैदा करके वो घर में उनको फेंका हुआ है. देयर वाज दिस केस, तो मेरे अपने स्कूल का है ना, वो जो उनका फादर है, वो जिस घर में वो रहते हैं, बच्चे और माँ, उनको रमजान में
कोई राशन नहीं लेके देता, वेल ऑफ। अब देखिए स्कूल में बच्चे पढ़ाना, 5 बच्चे कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। सो इफ ही कैन अफोर्ड दैट, बट वो अपने घर में राशन नहीं डलवा के देगा जस्ट टू टीच अ लेसन टू हिज वाइफ। आई मीन आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो? दूसरी तरफ आप ये देखो, उन्होंने पीछे कोई ना मुंह मारने के लिए कोई और रखा हुआ होता है, उनका एक बैकअप प्लान भी होता है उनका। और you're just मतलब घर में उनको एक अजीब सी बीवी चाहिए जो दाल रोटी भी करे और ताकी चाकी भी करे, बाहर उन्हें एक और किस्म की इसमें एक और भी तो जैसे अफीफा बता रही है ना कि अगर बच्चियों को आपने शुरू से पढ़ाएं, उनको एजुकेट करें, एम्पावर करें। और पता है कि देखो हमारे ये जो 65% जो है, ये जो लोग इलिटरेट क्लास है, बल्कि मुझे तो लगता है 80% है हमारी, उनके साथ क्या हो रहा है? आप उनकी तो आई मीन टेकिंग अ डिवोर्स एंड देन टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, और फैमिली की सपोर्ट तो उनको मिलती ही नहीं है। और वो बेचारियां जो है वो कंप्रोमाइज कर रही है, कंप्रोमाइजिंग द डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक एवरीथिंग दे आर कंप्रोमाइजिंग, क्योंकि उनको पता है कि डिवोर्स उनको खतरनाक है। कि अच्छा हाँ, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अच्छे खानदान से हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अपनी जॉब पे जा रही हैं, वो तो कॉन्फिडेंटली ले लेती है, लेकिन उन बेचारों को क्या होगा? We need to agree here. There's one thing, जो मेरे ख्याल से तुम और अपने केस में, मेरे केस में भी I think we find it there, like you said, we were educated, yes, that is one thing, and we had parents who supported, ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम था, ठीक है। नौकरियां करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना, ये तो आपको कुछ अरसे बाद स्टेबिलिटी आपके अंदर आती है और तब ये होता है, राइट? So when you're saying you had one son and the daughter was not even born at that time, so how financially stable can you be at that time of your life? So मेरे ख्याल से ये बहुत सोचने की बात है कि फाइनेंशियली स्टेबल बंदा वो होता है जब वो बंदा जो है ना, उसने पढ़ाई एटलीस्ट की भी हो, और घर में अगर आपकी कोई एक एनवायरनमेंट है ऐसी, एंड देन उसके बाद आपको जो है ना, अगर लोग आपको जाहिर है आपने नौकरी पर अगर जाना है तो कोई बच्चे को तो कोई देखेगा ना, if your parents are supporting you somehow financially, morally, physically, whatever that they are doing, so आपको मेरे ख्याल से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग हो जाते हैं अगर उनके पास सही टाइम पे उन्होंने पढ़ाई की हो और उनके जो इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट है वो उनको यू नो आई थिंक हेल्प आउट कहीं ना कहीं से कर रही है। मतलब इसका बहुत फर्क पड़ता है। You see, अगर आपको आपके पेरेंट्स, क्योंकि जब आप ऐसे रिलेशनशिप में होते हो ना, I'm talking about myself, I'm a very confident person. मतलब मैं I've always been, I'm sure Shiza remembers from the university time as well. लेकिन when I was married, I was a different person. मतलब जब मैं इस relationship से निकली, I remember, अगर मैंने कहीं पास बाजार में भी जाना होता था ना, I used to ask somebody, यार मुझे कोई ले जाएगा वहाँ पे? And you know, everyone used to look at me कि ये कैसी बातें कर रही है, you know? But आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा शैटर हो जाता है। ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना आपकी जिंदगी में, सबसे पहले आपको आइसोलेट करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं। दे टेल यू you're not good for anything. तुम्हें तो तुम बाहर निकलोगी, तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं, तुम्हें तो you won't be able to do anything. मैंने नोट किया ये भी करते हैं, वो आप में फॉल्ट ढूंढते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक है, ये रह नहीं सकी है, इसमें मसला है। और अच्छा, एंड औरत को ज्यादा टारगेट करते हैं, मर्द को नहीं करते। मर्द ने तो आज ही बड़ा अच्छा डिसीजन लिया हो या, बट दे ट्राई टू टारगेट द वुमन। आप थोड़ा सा इसको स्टैटिस्टिक्स देखे ना कि कितनी सारी लड़कियां हैं जो who have remarried again, बच्चे थे उनके और उनकी remarried, they have remarried and they're living happily ever after। जबकि आप मर्द बहुत ज्यादा देखते होंगे इस केस में, ऐसा होता है कि वो उधर आ गया, उनकी शादी हो गई, यहाँ पे उसने ये किया, डाइवोर्स की, उधर उसने जाके दोबारा शादी कर ली। 100% of them get married, 100%। खवातीन ऐसे नहीं है, खवातीन ऐसे नहीं है। So I think वो थोड़ा सा हमारी सोसाइटी काफी, देखो शिजा, अगर कोई है भी ना और अगर कोई अपने बारे में सोच रहा कर है तो आई एम ऑल फॉर इट, व्हाई नॉट? मतलब जिंदगी जीने का हक तो सबको है ना। हर एक का दिल करता है कि यार वी शुड have some time, apart from being a mother, be up, you're a human being as well. हर एक का दिल, जो आदमी कर लेती है और जिनको मिल जाते हैं। मैं तो I feel कि वो लड़कियां बहुत लकी होती हैं जिनको इस किस्म के लोग दूसरी दफा मिल जाते हैं, बिकॉज दूसरी दफा ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पहली दफा तो आपके बच्चे उस ट्रॉमा से गुजर गए हैं, दूसरी दफा नहीं आप गुजार सकते। And like you mentioned, और पता है क्या, I advise always,
मैं कह रही हूँ जो उनकी उस टाइम पे एज थी उन बच्चों की, तो उस टाइम तो वो गुजर गए, उनको पता भी नहीं चला, यू नो, इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट। लेकिन अब जो है उनको पता भी चलेगा, अब उनके ऊपर इम्पैक्ट भी होगा, तो यू हैव अ बिगर रिस्पांसिबिलिटी नाउ देन एवर बिफोर। I think you and me we have this similarity. मेरे सर्कल में क्योंकि आगे पीछे खवातीन है ना, अगर कोई खातून डिवोर्स भी है तो मैं उनको कहती हूँ कि जी ट्राई टू फाइंड, इफ यू ट्राई टू फाइंड कोई अच्छा मर्द मिल जाता है, कोई अच्छा इंसान मिल जाता है, तो प्लीज गेट मैरिड अगेन। इट्स अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट ओनली कि जी आपका एक दफा फेलियर बनो, आप सारी जिंदगी इसी के साथ कि जी एक फेलियर मुझे मिला या एक बंदा इतना बुरा था तो सारी दुनिया तो बुरी नहीं है। आई थिंक यू शुड ट्राई। आई थिंक कि हो सकता है आपको अल्लाह ताला कोई अच्छा इंसान दे दे। मुझे लगता है कि औरत अपने लिए रास्ता बंद नहीं करती। लाइक इफ यू आस्क मी, तो मैं ये नहीं कहती आई एम नॉट नेवर गोना गेट रीमैरिड। मैं यही कहती हूँ कि इफ आई कम अक्रॉस एनीवन जो मुझे लगा इस तरह का कि यू नो मुझे अगर ये लगा कि मेरे बच्चों के हक में अच्छा है, तो फिर व्हाई नॉट। It's now तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हो, now you're making it too difficult। यार ये never know, हो सकता है अच्छा इंसान मिल ही जाए, और स्पेशली अगर किसी के अपने भी बच्चे हों and then they understand कि she will be mother to my kids as well as her kids। That's exactly। ये हो सकता है। मैं ये कहती हूँ, मैं पता है कि और अर्ली एज पे जिनकी स्पेशली हो जाती है डिवोर्स, मुझे ये होता है कि आपने सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी, और आप कोशिश करें, हो सकता है कोई कंपेनियन अच्छा मिल ही जाए यार। हाँ, definitely, why not? दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। You know, when I got divorced, I was very young. तो मैं and I am the only daughter of my parents, तो you can understand कि पेरेंट्स का भी आपके ऊपर एक होता है कि एक टाइम तो ऐसा था, my parents were like कि यार बच्चे इतने छोटे हैं, बच्चे हमें तो तुम शादी कर दो, you know, तुम अपनी जिंदगी। And I was like, आपको अपनी एक बेटी नजर आ रही है, मुझे अपने 2 बच्चे नजर आ रहे हैं। You know, I cannot do this। तो अब at this point now they agree कि वाकई अगर हम तुम्हें उस टाइम पे, और बहुत पुश करता है, पता है आपकी फैमिली भी पुश करती है, एंड बट यही था कि अब मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ शादी नहीं करनी कि यू नो जस्ट टू हैव दैट टैग कि अच्छा मेरी शादी हुई है, आई हैव अ हस्बैंड, आई डोंट नीड द टैग एनीमोर। मैं अब चाहती हूँ कि यस डेफिनेटली अब जो हो, अब वो ऐसा हो कि जो साथ चले, समझे और साथ चले, साथ दे। Because parenthood, I'm sure Shiza will agree, single parenthood बहुत मुश्किल है। It's very difficult। जब आपको बच्चों मैं स्टार्ट में आपको एग्जांपल दे रही थी ना बाकी सोसाइटीज की, मैं ये कह रही थी कि भी नॉट ओनली फॉर द किड्स एंड ऑल दिस, आपकी अपनी भी तो जिंदगी होती है। जैसे मैं वो अरब की बात बता रही हूँ, उसको स्टिग्मा करके ये नहीं कहता सारी उम्र तुमने कुछ नहीं करना, बस अपने बच्चे पाल और वो कर। यू हैव किल्ड हर। आई मीन ठीक है, एक दफा हो गया, कोई बुरा इंसान मिल ही जाता है, तो आप दोबारा ट्राई करें। और अनफॉर्चुनेटली नहीं ना होता ही है ना कि आपको आसपास भी जो आपकी एग्जांपल्स या जो मिल रही होती है ना, वो भी ऐसी होती है। इंसान ज्यादा गुड, यू नो, इट्स गुड रिजल्ट्स हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम कोई एक एक्सपेरिमेंट थोड़ी है कि एक बार फेल हो गया तो अगली बार सही हो जाएगा, उससे बार अगली। ओ भाई बस ना, इनफ एक्सपेरिमेंट्स, इट्स फाइन, इट्स फाइन, लुक एट द पॉजिटिव साइड। No, नहीं, फेलियर नहीं होगा। द आइडिया है इसके, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बीइंग अ डिवोर्सी एंड लिविंग एज अ डिवोर्सी इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एज वेल। Yeah, so divorce करना, even thinking कि यार शादी होनी चाहिए, अभी हो जाएगी, होनी होगी तो हो जाएगी, but I am not saying it's wrong. It's not wrong. It's your choice. If you want to have being a single parent, if you want to get remarried again, it's your choice. उसमें कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि जी तुम्हें, क्योंकि तुम सिंगल पेरेंट हो, अब तुम बस अब तुम्हें हम इस तरह देखेंगे तो अब तुम बहुत बुरी हो या नहीं। आई एम सेइंग कि कीप द डोर ओपन एंड इंस्टेड ऑफ यू नो सारी जिंदगी इस तरह बता रहने से बेहतर है कि हो सकता है आपको पॉजिटिव मिल ही जाए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये ट्रेंड होना चाहिए कि अगर आप डिवोर्स हो तो कोई बात नहीं, यू कैन गेट मैरिड अगेन, नो प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाह रही हूँ। I think obviously there's no harm in that, but मैंने कुछ जो अपने close knit circle में जब मैंने, you know, I've seen my friends getting remarried, and you know that the remarriage was a love marriage, and
but the way it turned out, you see, जब आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उसके भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और पता नहीं क्यों, ये शायद मेरे दिमाग में ये है कि मैं कहती हूँ कि यार जब अपने बाप ने नहीं किया ना, तो कोई और बाप बन के, मैं आई डोंट नो, मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि जब अपने ने नहीं किया तो और कोई नहीं करता। और आजकल देखें, मैं आपसे जो बात कर रही थी ना कि मर्दों के अंदर ये चीज खत्म हो गई है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बीवी है, हमने वी आर द प्रोवाइडर्स, हमने इनको प्रोवाइड करना है। डिवोर्स हो गई, औरत मर्द का रिश्ता नहीं चला, खत्म हो गया, पर औलाद तो आपकी अपनी है ना। आजकल इन बच्चों के ऊपर भी कोई ओनरशिप नहीं है, उन पेरेंट्स, उन फादर्स की अनफॉर्चुनेटली कोई ओनरशिप नहीं है। आई मीन दे वुड नॉट इवन कम टू मीट। उनको पता है हम जाके मिलेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। सो मेरी डिवोर्स को इट्स बिन 10 years एंड आज तक मेंटेनेंस मेरे एक्स हस्बैंड ने नहीं दिया। He never paid. He doesn't come and see. My children have met him only once, that too in the court. I feel like it's so unfair to, मेरे साथ तुम्हारी नहीं बनी ना, मतलब we were two adults जो अपने बच्चों को भी नहीं देखना चाहता। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल मैं अपने सर्कल में से मैं आपको ये बता, आप अपनी उस टॉक्सिक या अपनी जहरीली या अपने कोर्ट कचहरी में जाएं, आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। Exactly. आप कोर्ट कचहरी में जाए, आपको पता चलेगा वहाँ पे माएं सारा दिन अपने बच्चों को लेके बैठी रहती हैं, बाप आते नहीं है विजिटेशन के लिए, ठीक है। सो हम पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं। सो आप एंड देन यू थिंक और हमारा लॉ भी ऐसा है, आपको पता है हमारा लॉ भी ऐसा है। मैं आज कोर्ट से आई, आज आई टुक माय किड्स टू द कोर्ट एंड ही डिड नॉट शो अप। एक रात पहले से मैं अपने बच्चों को उनके मेल्टडाउन्स देख रही हूँ। We don't want to go, we don't want to see him, we don't want to do this, and then I'm telling them नहीं, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता, let's go, let's do this, ये करके I took them and he did not show up. And then और फिर वो जो एक disappointment थी, the judge asked my kids, do you want to live with the mother or the father? And they said, we want to live with the mother. And he said, why? So the thing my kids said was, वो कभी आते नहीं है, वो हमें मिलते ही नहीं है। I mean, it's so unfair. For the that's kids. very unfair. Even if I try to put my own equation in there, so what happens is even if they do meet up, the meeting is so superficial that the kids cannot even connect with it. They just feel like, yaar, what is this bakwas? Hame nikalo idhar se. It's headache for them to sort of be in that sort of a presence at all, because unko hota hai we cannot relate to this person, we don't know this person, there's no bond. There's no bond, and that person has other children now. So if that person brings along the other children, वो अपने अगर दूसरे बच्चों को उठा के ले आता है, तो the kids actually feel कि यार ये क्या है, this is our space, वो भी खत्म हो गई है। You understand? So kids get very competitive, and आजकल आपको पता है इतने ज्यादा मसले मैं हैरान हो रही हूँ कि इतने बुरे लोग हैं दुनिया में यार। अगर 0.5% आपको पता है अगर why they are in this world because of you? नहीं माँ, अगर हम इंडिविजुअली आपको स्टोरी सुनाना शुरू करें ना, you'd be shocked. और अभी मैंने और श्वेता ने, I think we have never spoken about this to never. हमारी we've never spoken. Never. You still speak about it. I never speak about it. हाँ, मैं तो I'm very open about it. कि बस हुआ है। अब मैं ये सोचती हूँ, हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था, Is it the fault in the raising these kind of sons? ये जो इस किस्म के मर्द हैं, ये इस किस्म की स्पीशीज हैं, ये किधर से 100%। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आप ये नहीं कह सकते अच्छे स्कूलों में पढ़ाओगे तो ये नहीं होगा। आप my ex he had studied in the topmost school of this country and throughout from yeah and और उसमें आप ये देखें कि जो उसकी पर्सनालिटी थी ना, मतलब देर आर एचएस सोनियंस, उनकी कोई पीआर तो होती है ना, और कुछ ना हो, मतलब बाकी
जो आपके घर का माहौल होता है ना, वो बहुत फ्यूडल सिख मर्द। लेकिन वो मैं देखो मेरी मुझे फ्रेंड, हाँ वैसे ये तो लेकिन आई हैव मेट सम वेरी गुड पीपल फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट एज वेल, लेकिन अगर और कुछ नहीं है ना, अगर और कुछ नहीं है तो उनकी पीआर है, पीआर बड़ी अच्छी होती है उनकी कि यू नो फ्रेंडशिप्स एंड स्टफ। लेकिन अभी मैं अब तो अपने स्कूल के हिसाब से सोच रही हूँ, अब तुम सिर्फ अपने स्कूल के हिसाब से सोच रही हो। नहीं देखो वो उस बेचारे के साथ तो डबल हो गया ना, पहले एचएसएन फिर फौज, तो वो डबल although I think I should not be blaming him so much. And also, I think other than the school, the family or the mother, especially the way they are raising their kids, especially the son, that's very important. असल में I think like I started from the beginning, मैंने यही कहा था कि जिस तरह से बाप अपनी बीवी को ट्रीट होते हुए देखते हैं, ये लड़के उसी तरह से अपनी बीवियों को बाद में ट्रीट करते हैं। अगर ये उनके नॉर्मल है ना, देखा है तो वो कहते हैं ये तो होता है, so वो ये नॉर्मल है। वो ये कहते हैं, हम देखिए our kids when they're born they're born with a blank mind, उनके लिए कोई सही गलत नहीं होता, हम पेरेंट्स सेट करते हैं। आप जैसे बेटियों को देखें ना, वो अनकॉन्शियसली भी अपनी माओ की तरह होती जाती हैं, उनका स्टाइल अपनी माओ की तरह बनता जाता है। वो इसलिए होता है बिकॉज वो अपनी माँ को देख रही है, उनको लगता है कि बस जो मेरी माँ कर रही है वो सही कर रही है। यू नो पहला होता है कि जो मेरा बाप कर रहा है वो सही कर रहा है, जो मेरे घर का माहौल है वो सही, दिस इज द नॉर्मल। और फिर वो और दिस इज मैं ये तो खैर मेरी आंखों देखी चीज है ना कि दे आर बच्चे वही बनते हैं जो उनके घर का माहौल होता है। वो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दैट इज ट्रू। और वो एक मर्द को अगर आप मर्द ही ना रहने दें, वो इतना ज्यादा एक और औरतों में रह के उसका सोचना ही औरतों की तरह हो जाए, तो फिर मतलब फिर आप एक औरत के साथ रहना, आपको मर्द के साथ रहने की जरूरत ही क्या है। लेकिन मैं सोचती हूँ औरत में, अच्छा हम कंपेयर करते हैं औरत को, तो देखिए औरत को कितनी अच्छी होती है, केयरिंग, इमोशनल, उसी तरह बन जाए कम से कम, वो तो आ जाए ना ट्रेड। नहीं, और सिर्फ ये एक ही तरह के ट्रेड जो उनको सूट करता है, वो सिर्फ उसी ट्रेड पे जाते हैं जो उनको सूट करता है। ट्रेड है ना, वो मैस्कुलिन ट्रेड वो वाले अडॉप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक इसी के ऊपर हम एंड करेंगे। थैंक यू वीफा फॉर जॉइनिंग अस, वी आर लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड you too, and you are a strong woman. Thank you so much. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डू राइट टू अस एंड डू लेट अस नो कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और इसके साथ साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह।